آفتاب ہدایت تو روشن ہوا، آفتاب ہدایت تو روشن ہوا، چاند تاروں تمہاری ضرورت نہیں، چھٹ گیا ہے جہاں سے اندھیرا میرے ماہ پارو تمہاری ضرورت نہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پیش کرنے کے لیے بے شک خدا کی توفیق درکار ہے، حضور کی سچی محبت درکار ہے۔ رضا بریلوی بھی کہتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرہ کا اہتمام کیا ہے، اس کے تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو کے فروغ کے حوالے سے، اردو کی ترقی و تعمیر کے حوالے سے مختلف پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے نعتیہ مشاعرہ، اس میں ہم نے اسٹیٹ بھر کے بالخصوص ضلع بنگلور کے شعراء کو مدعو کیا ہے، اسٹیٹ بھر کے نہیں، ضلع بنگلور کے ہم نے مخصوص شعراء کو مدعو کیا ہے۔ محترم جناب منیر احمد جامی صاحب ہماری ایجوکیشن کمیٹی کے انتہائی متحرک رکن ہیں، ان کی نگرانی میں آج کا یہ مشاعرہ کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کافی شعراء شہر بنگلور کے آئے ہوئے ہیں، اور جو شعراء چھوٹ گئے ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم ان کو بھی مدعو کریں گے، اور یہ ہم آپ کے میڈیا کے مادھیم سے ہم انہیں مطلع کرنا چاہتے ہیں، خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ بنگلور میں اور آس پاس میں بہت سارے ہمارے اردو کے شعراء ہیں، اردو کے ادبا ہیں، وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کاروان اردو میں شامل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج منیر احمد جامی صاحب جو ہمارے شہری کے نہیں، ہمارے کرناٹک کے بلکہ ساؤتھ انڈیا کے انتہائی متحرک، فعال اور بہت ہی شاندار ادیب و شاعر ہیں، اور نعت گو شاعر بھی ہیں، اور بہترین قلمکار ہیں، اور بہترین نثر نگار ہیں۔ آج ان کی ایک کتاب موج سلسبیل جو حضرت علامہ عبدالرحمن جامی صاحب کا جو منظوم کلام فارسی زبان میں تھا، اس کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا ہے، ان کی کتاب کا رسم اجرا بھی تھا۔ اس موقع پر ہم ان کو آپ کے ذریعے سے اہل اردو کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت دے۔ ہمارے تمام اردو کے شعراء ادبا جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں کسی نہ کسی رنگ سے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی زبان میں، ان کی زبان اور ان کی تحریر میں ترقی و کامیابی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے نعتیہ مشاعرے اور منیر احمد جامی صاحب کی موج سلسبیل کا اجرا یہاں منعقد ہے۔ واقعی کرناٹکا اردو اکیڈمی کا یہ قابل صد تحسین اقدام ہے کہ بنگلور میں پہلا پروگرام جو انہوں نے کیا ہے وہ نعتیہ پروگرام سے شروع کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ نعتیہ پروگرام سے ہی ابتدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ رسم رہا ہے، یہ رسم رہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مشاعرہ منعقد ہوتا ہے اس میں حمد اور نعت کے بعد ہی مشاعرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس حساب سے بنگلور میں یہ پہلا پروگرام نعتیہ جو ہے قابل صد تحسین ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین اور تمام اراکین کو کہ انہوں نے یہ بہت ہی قابل صد تحسین اقدام کیا۔ منیر احمد جامی صاحب بلا مبالغہ کہنا چاہیے اور بلا شبہ وہ ہماری ریاست کے ایسے نمائندہ شاعر ہیں جنہیں تقدیسی ادب میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ تقدیسی ادب سے مراد اس میں مذہب اسلام اور کتاب مبین اور
नबी करीम की सीरत मुबारका और अकाबिरीन मिल्लत का अहवाल वग़ैरह इसमें शुमार होता है। इस हवाले से आपने बहुत काम किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को, हयात मुबारका को उन्होंने एक किताब वजह कुल में उन्होंने उसको मुरतब करके हमारे रूबरू पेश किया है। और आज जिस किताब का यहाँ इजरा हुआ है मौज सलसबील, ये दरअसल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब जो खिरासा ईरान से वाबस्ता हैं और पूरी इस्लामी दुनिया में उन्हें बड़ी कद्र की निगाहों से देखा जाता है, तो उनका नाम जो तक़ल्लुस था उसी से मुस्तआर जामी साहब ने भी किया है। और वो उनकी मेहनत और रियासत रही है कि उनके मुंतखब क़साइद, नातिया कलाम और उनके मनक़बती कलाम को उन्होंने आज हमारे रूबरू मौज सलसबील में पेश किया है। किताब न सिर्फ मानवी एतबार से भी बल्कि इसकी जो ज़ाहिरी ख़ूबसूरती है वो भी काबिल दीद है, दिलकशी इसमें समाई हुई है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपकी किताबें क़दर की निगाहों से अदबी हलक़ों में देखी गई हैं, नाक़िदीन ने भी इसको सराहा है, इसी तरह क़द्र व मंजिलत जामी साहब को भी इस किताब के हवाले से मिलेगी। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम सब के लिए, बल्कि कर्नाटक के सभी उदबा शुअरा के लिए और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के बहैसियत रुकन में यह बात बता रहा हूँ, हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है, नाज की बात है कि आज नातिया मुशायरे में मोहतरमुल मक़ाम मारूफ़ शख्सियत, खिदमत गुज़ार मिलत इस्लामिया, मारूफ़ शायर मोहतरम जनाब हज़रत मुनीर अहमद जामी साहब की किताब मौज सलसबील की रूनुमाई हुई है। यकीनन हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है कि हमारी दुआ है कि इस तरह के और कई किताबें इनके बाहर आएँ, इसलिए कि ये वो शख्सियत हैं जिनका कलाम बहुत जगहों पर, ना फ़क़त बेंगलुरु, ना फ़क़त कोई डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पूरे कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है और इनके कलाम को बहुत पसंद किया जाता है। यकीनन मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मोहतरम दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और इस तरह से और आपकी किताबें जो है मंज़र आम पर आएँ। जी जी जी, मैं अपना स्टेटमेंट मेरे एक अपने शेर से करना चाहूँगा। मेरा लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूँ, नहीं लगता मेरा लिखा हुआ है। क्या बात। दरअसल जो मुझ में सलाहियतें आई हैं वो मेरी अपनी नहीं, बल्कि मैं इसको खुदा की तरफ से अता करदा समझता हूँ। यही सबब है कि जब भी मैं जो भी काम करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ इन्फरादियत ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ नयापन ज़रूर होता है। हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि अपना रास्ता एक अलग इख्तियार करूँ, ये नहीं कि दूसरे उदबा या शुरा से मैं अलग ही अपना रास्ता कर लूँ, ऐसी बात नहीं है। अदबी तख्लीक़ के ताल्लुक़ से मैं ये हमेशा कोशिश किया है मैंने कि मैं अपनी एक राह अलग तजवीज़ करूँ और उस पर चलो ताकि लोग कुछ नया पाएँ, कुछ नया पढ़ें। इसी कोशिश के नतीजे में आज जो ये मौज सलसबील किताब मंज़र आम पर आई है, उसी सिलसिले की एक कड़ी समझूँगा। मैंने जब अर्ज़े हरफ़ आगाज़ में इस किताब के मैंने जैसा लिखा है कि अपने गज़लियात के मजमूए को मुरतब करने के बाद मैंने सोच लिया था कि शायरी से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे दफ़तन अचानक तौर पर एक इशारा सा मिला कि मैं क्यों ना ये काम करूँ कि जामी साहब के जो नातिया कलाम है उनका, उनके जो क़सायद है उनको उर्दू में तर्जुमा करूँ। तो मैंने इस पर कदम उठाया और इस काम को मैंने मुकम्मल किया। हालांकि इसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आईं, बिलख़ुसूस हमारे जामी साहब का कलाम हासिल करने में मुझे बड़ी तगौदो करनी पड़ी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुझे इसका कोई नुस्खा नहीं मिला। कश्मीर से मैंने इस किताब को मंगवाया था, तो वहाँ से मुझे एक साहब ने मेरी ख्वाहिश के मद्देनज़र उन्होंने वो किताब भेजी, मौलाना जामी हयात व खिदमत। मैंने उस किताब से इस्तेफ़ादा किया और जहाँ तक मेरा तर्जुमे का ताल्लुक़ है मैं उसी किताब को इसका क्या करूँगा, उसी किताब को मैं क्रेडिट दूँगा कि मैंने उसी किताब से इस्तेफ़ादा करके ये तर्जुमा किया है। नातिया मुशायरा आज का जो आज इसी सिलसिले में आज एक नातिया मुशायरा भी मुनक़िद है, जिसमें ये ज़िले सतह का मुशायरा है, बेंगलुरु की ज़िले की हद तक है। इसमें बेंगलुरु के शोरा और कुछ मदऊ शोरा इसमें अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। मेरा नाम हाफिज़ मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मैं
शहर गंगावती ज़िला कोप्पल से यहाँ पर शामिल हुआ हूँ, इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बना हूँ। वो उसकी वजह यह है कि रियासती उर्दू अकाडमी ने मुझे और हमारे साथी हाफिज़ अल्लामा मौलाना मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब को यहाँ पर बतौर मेहमान मदऊ किया है और यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम शामिल हुए और हमें इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि इस नातिया मुशायरे में तो नात और अपनी तरफ से अपने अपने मनाजात मनक़िबतें और नात तो पेश करते ही हैं, मगर साथ ही साथ बड़ी बात यह रही कि मौज सलसबील हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब को जो तर्जुमा करके हज़रत मुनीर अहमद जामी साहब ने जिसको पेश करने की सआदत हासिल की है, उसके रस्म इजरा में हम शरीक हुए। ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और साथ ही साथ में इंशाअल्लाह अभी नातिया मुशायरे का आगाज़ होगा। हस्ब दस्तूर जो है, जो उसका उसूल है, क़िरात हम्द और नात का सिलसिला चलेगा। शोरा इकराम अपने अपने नातों को पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम रियासती उर्दू अकाडमी कर्नाटका वो रियासत भर में जहाँ पर उर्दू तबका है वो ये महसूस कर रहा है कि अब शहरों के हद तक महदूद हो गई है उर्दू, नहीं बल्कि सारी रियासत में उर्दू का बोलबाला है। इसको आम करने के लिए ज़रूरत है कि रियासत भर के प्रोग्राम्स को वो इनेकाद करे और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करे। हम उम्मीद करते हैं कि अकाडमी हमारे इस जो है गुजारिश को कबूल फरमाएगी, तवज्जो फरमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।